Hello people, welcome back to my channel Study with Aarti Gupta. Today again I am in front of you with a new video lecture, and this video is very important for all the exam, whether it is UGC NET English Literature or TCT PGT. So today in this video I am going to discuss R.K. Narayan, and before starting the novel I would give you some basic information which you should have known, because all these exams sometimes directly questions are asked from the biography of the writer. So the first point is that R.K. Narayan is also known as the South Indian A.M. Forester, and he also got the Sahitya Academy Award for his novel The Guide. And as you all know that he also wrote two classical version of epics like the Mahabharata and the Ramayana. And if I will ask you the question that which is the only work of R.K. Narayan in which he depicted a character of a co-wife, I think you should have the knowledge of this question. But I am telling to you the answer. The answer is the Grandmother's Tale. This is the only work of R.K. Narayan in which he talks about the character of a co-wife. So all these points are very important, and the thing is that he also the writer of the trio who contributed his most of the part in Indian literature, and in the trio there are three novelists like Mulk Raj Anand, Raja Rao, and included R.K. Narayan. All these formation are very important, and in this video I am going to discuss the novel Swami and Friends. Swami and Friends, his first novel and published in 1935, and this novel is also one of the part of his trilogy. Sometimes he is also compared with the writer William Faulkner. William Faulkner is called regional novelist in the manner of R.K. Narayan, because in his work R.K. Narayan also used Malgudi. So apart from this knowledge, I would like to say you that till now, if you did not subscribe my channel, please like and subscribe my channel and share to those students who are going to prepare for UGC NET English Literature, so that time to time they got notified for the upcoming videos. And if you have any queries, any doubt, you can put your comment in the comment section below. So let us start the novel. ये जो कहानी स्टार्ट होती है स्वामीनाथन से। स्वामीनाथन जो कि अपने दोस्तों सोमू, मनी, शंकर एंड सैमुअल के साथ अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। सोमू जो कि क्लास का मॉनिटर है, और शंकर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है अपनी क्लास का। सैमुअल जिसको हम पी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ये जो स्वामी है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और ये हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिज़ी रहता है। इसके सारे दोस्त जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं अगर हम कंपेयर करें स्वामीनाथन से, लेकिन जो स्वामीनाथन है वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, और पढ़ाई में इसका बहुत ही कम मन लगता है। अब इसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है राजम। राजम जो कि एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट का बेटा होता है। अरे अब तो राजम और इसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। राजम से फ्रेंडशिप होने के बाद ये अपने दूसरे दोस्तों से अलग हो जाता है, जिसमें कि सोमू, मनी, शंकर, सैमुअल होते हैं। अब मनी जो कि पहले नहीं दोस्ती करना चाहता था, बाद में ये राजम से दोस्ती कर लेता है, लेकिन अब इसकी फ्रेंडशिप अपने दोस्तों के साथ उतनी अच्छी नहीं रही जितनी कि पहले अच्छी थी। अब स्वामीनाथन जो होता है वो क्या करता है कि राजम से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होने के साथ ही अब एक दूसरे के घर पे भी उनका आना जाना स्टार्ट हो जाता है।
पहले स्वामीनाथन की और मनी की फ्रेंडशिप खराब होने की वजह से जो स्वामीनाथन होता है वो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है। लेकिन बाद में मनी, स्वामी और राजम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन अभी भी सोमू, शंकर और सैमुअल से इसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई है। स्वामी जो कि राजम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता है, लेकिन अपने स्कूल की वजह से वो उसके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाता है। और ऐसे ही करते करते फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं। सभी दोस्त जो कि अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, बट स्वामी वैसे ही एज यूजुअल रहता है। इवन एग्ज़ाम में भी वो अपने दोस्तों से पहले ही एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर लेता है और फ्री होकर बैठ जाता है। अब यहाँ पे सारे दोस्तों का पेपर ख़त्म हो चुका है। अब सब लोग लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंक फेंक रहे हैं और अपना जो सेलिब्रेशन है उसको कर रहे हैं। अपने उन्होंने पेपर्स फाड़ के फेंक दिए हैं। इतना करने के बाद जब उनके टीचर्स में से एक टीचर जो कि उसके स्क्रिप्चर टीचर होते हैं वो आते हैं और स्वामी को डांटते हैं और दूसरे बच्चों को भी डांटते हैं, तब जाके उनका वो ब्रेकअप होता है। ये जो स्वामी हैं ये वैसे भी अपने इन टीचर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो टीचर हैं ये हमेशा स्वामी को बोलते थे कि तुम्हें क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन जो स्वामी था वो इस चीज़ को बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। इस वजह से इसकी और इसके स्क्रिप्टर टीचर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और स्वामी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जैसे ही वेकेशन स्टार्ट होता है तो स्वामी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाता, जिससे वो बहुत ही अकेला हो जाता है, बहुत ही लोनली फील कर रहा है यहाँ पे। अब वो चाहता है कि उसको टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो एक कोच से मिलता है और उनसे कहता है कि आप मुझे एक हुप लाकर दे दें। वह कोच हुप लाने के लिए तैयार हो जाता है और वो इसके बदले 6 पैसे की डिमांड करता है। लेकिन स्वामी के पास तो थे नहीं 6 पैसे, तो वो मनी को बोलता है कि अरे यार मेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर दो। तो मनी उसके लिए 6 पैसे अरेंज करता है। लेकिन वो जो कोच होता है वो एग्जैक्टली स्वामी को चीट करता है और उसको हुप लाकर नहीं देता है। तो अब यहाँ पे स्वामी को तो बहुत गुस्सा आता है और स्वामी अपने दोस्त मनी के साथ ये प्लानिंग करता है कि अब हम लोग इसके बेटे को, कोच के बेटे को किडनैप कर लेंगे। और वो लोग उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं, बट इसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। लेकिन एट लास्ट फिर वो छूट भी जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पे ये दोबारा मिलता है राजम से। अब राजम इसको अपने घर पे बुलाता है और कहता है अरे यार तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम मेरे घर पर आ जाना। अब जब यहाँ पे राजम जाता है अपने दोस्त स्वामी को अपने घर पर लेके, तो स्वामी क्या देखता है कि यहाँ पे उसके सारे दोस्त साथ में होते हैं। स्वामी, सोमू, मनी, शंकर और सैमुअल। ये देखकर ये अपने स्वामी घर पे बहुत ही एक तो ज़्यादा फ्री रहता खुश हो है, जाता है। तो इसके फादर इसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम जो तुम्हारी पिछली क्लास के क्वेश्चंस हैं, जो तुम्हारी बुक्स हैं, उसको तुम फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। ये बात स्वामी को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर देती है, लेकिन स्वामी उनकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद उसके फादर उसको एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, जहाँ पर उसको अकबर अली मिलता है। अकबर अली और उसके बीच में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन ये बोर्डिंग स्कूल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है।
क्योंकि यहाँ पे अल्बर्ट मिशन स्कूल से बहुत ही ज़्यादा होमवर्क मिलता है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं और स्वामी को तो पहले से ही नहीं ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। अब उसको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा है। तो उसको ये पता चलता है यहाँ पे कि जो राजम है उसका एक मैच स्टार्ट होने जा रहा है और वो मैच दो टीम्स के बीच में होना है। एक टीम जो कि एमसीसी के नाम से होती है, जिसका फुल फॉर्म है मालगुडी क्रिकेट क्लब, और जो दूसरी टीम होती है वो होती है YMU। राजा इससे बोलता है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डेली आना है, क्योंकि हमारी टीम को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो स्वामी है वो जाना तो चाहता है, लेकिन उसको अपने बोर्डिंग स्कूल से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो चोरी चुपके कई बार वहाँ से जाता भी है, लेकिन बाद में उसको अपने टीचर से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ती है। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं डॉक्टर से मिलकर एक अपने लिए मेडिकल बनवा लूँ और उस मेडिकल के थ्रू मैं स्कूल से छुट्टियां ले सकता हूँ। अब जब ये जाता है डॉक्टर टी केशवन से मिलने, तो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे टीचर से बात कर लूँगा और तुम जाओ आराम से जाके प्रैक्टिस करो। तो अब यहाँ पे जो स्वामी होता है वो डॉक्टर की बात पर विश्वास करके वो वहाँ से भाग जाता है और क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन फाइनली ये पता चलता है कि जो डॉक्टर था उसने तो बात की ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसके टीचर्स बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। उस पनिशमेंट से बचने के लिए ये क्या करता है कि स्कूल से छोड़कर ये जंगल की तरफ भाग जाता और उस जंगल में ये खो जाता है और बिल्कुल अकेला होता है। अब ये अकेला बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है कि मैं कैसे घर जाऊँ अपने, मैं क्या करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता है। फाइनली ये अपने घर पहुँचता है और बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। वहाँ पे उसको अपनी ग्रैनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी ग्रैनी उसको समझाती हैं, उसका एक छोटा भाई भी आ चुका होता है, उसके साथ उसको बहुत अच्छा लगता है। उसकी ग्रैनी उसके साथ बहुत सारी बातें करती हैं और पहले भी वो अपनी ग्रैनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके दोस्त आते हैं और इसके दोस्त इसको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली उस मैच का क्या हुआ, और बताते हैं कि हम वो मैच हार चुके हैं और वो मैच जीता है यंग मैन्स यूनियन ने। अब ये बात जैसे ही स्वामी सुनता है उसको बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और वो ये सोचता है कि अब तो राजा मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया होगा। अचानक से उसे पता चलता है कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर गौरी शंकर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो वह भी यहाँ पे प्रोटेस्टेंट में पार्टिसिपेट करता है और वो कैप जो उसने पहनी होती है, लोग उसको बोलते हैं कि ये जो कैप है ये इंडिया की बनी हुई नहीं है, ये खादर की बनी हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये स्वामीनाथन अपनी कैप फेंक देता है और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट में पार्टिसिपेट करता है। स्वामी यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और वो इस प्रोटेस्टेंट वक्त के बारे में, इस फाइट के बारे में सोचने लगता है कि मुझे भी इसमें पूरी तरीके से अपना साथ देना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ वो इस चीज़ में तैयार हो जाता है। लेकिन घर पे जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो इसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डांटते हैं, लेकिन स्वामी अपनी बात पे अडिग है और वो इसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। ना तो वो तैयार होता है और ना ही उसके दोस्त तैयार होते हैं। यहाँ पर स्वामी का
अपने दोस्त राजम के साथ रिलेशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, क्योंकि जब उस फाइट में राजम के फादर जो कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट होते हैं, उन्होंने स्वामी को देखा था। स्वामी को और कुछ और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। तब से स्वामी के दिमाग में ये चल रहा था कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, ये ट्रेटर हैं, ये विद्रोही हैं, जिसकी वजह से राजम भी यहाँ पर इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये चीज़ स्वामी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो ये सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से राजम से अपना रिलेशन अच्छा कर लेना है। उसी बीच उसके दोस्त उसको ये बताते हैं कि स्वामी, जो हमारा दोस्त राजम है वो हमेशा के लिए हम लोगों को यहाँ से छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसके फादर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। और दोस्तों, जैसे ही ये बात स्वामी को अपने दोस्तों से पता चलती है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वह अपने दोस्त को नाराज़ नहीं कर पाएगा, वो उनको इस तरीके से नहीं। स्वामी अपने दोस्त मनी के साथ रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है, जहाँ पे वो राजम से मिलना चाहता है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद उसका राजम तक पहुँच जाना बहुत ही मुश्किल काम था। एग्जैक्टली यहाँ पे जो स्वामी होता है वो राजम को एक बुक गिफ्ट करना चाहता है, जिसके थ्रू वो उसको सॉरी भी बोलना चाहता है और उसको मनाना भी चाहता है। यहाँ पे स्वामीनाथन बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फाइनली यहाँ पे राजम के पास तक पहुँच जाता है और उसको वो बुक गिफ्ट में दे देता है और यहाँ से राजम हमेशा के लिए चला जाता है। अब इस प्रकार से ये नॉवेल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि स्वामीनाथन हमेशा से ही अपने दोस्तों के बारे में ही सोचता रहा। इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाया और इस वजह से उसने बहुत सारी अपने फैमिली से डांट भी खाई, लेकिन फिर भी वो एट लास्ट तक अपने दोस्त के बारे में ही सोचता रहा और यहाँ पे नॉवेल एंड हो जाती है। इस नॉवेल में कुछ क्रिकेटर्स के नेम भी दिखाए गए हैं, जिसमें से कि स्वामीनाथन की कंपेयर की गई है मॉरिस टेट से, क्योंकि मॉरिस टेट एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता है और इस नॉवेल में स्वामीनाथन एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता है। तो इस तरीके से मॉरिस टेट की कंपेयर स्वामीनाथन से की गई है। इस नॉवेल में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इंडिकेट करती हैं डायरेक्टली कैरेक्टर्स को, जैसे कि क्रिकेटर्स हो गए। इसमें स्वामी को बोला गया है टेल और सोमू को बोला गया है द अंकल ऑफ द क्लास, क्योंकि वो क्लास का मॉनिटर होता है। तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि नॉवेल बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू सो मच।